ਅਸੀਂ ਅੱਜ करना एनर्जी ट्रांसफ़र इन photochemical reactions। दैट इज़ असी फिनोमेना करना फोटोसेंसिटाइजेशन। बेटा कई बार नोट आ जाता व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसेंसिटाइजेशन और राइट ए नोट ऑन फोटोसेंसिटाइजेशन विद एग्जाम्पल असी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हुण बेटा मैं एग्जाम्पल लिती हुई है फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट दी ना, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस दी, फोटोसिंथेसिस है ना बाय ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जिन्हों CHL लिखते हैं, क्लोरोफिल ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट। तो मैं बार बार बोलिया कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमोसफेयर प्रेजेंट आ, वाटर वेपर भी प्रेजेंट आ, ईवन दैन वो रिएक्ट करके की नहीं बनाते बेटा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, ग्लूकोज नहीं बनाते, C6H12O6 के नाल ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते। ठीक है बेटा, तो फिर इसका मतलब फिर की हो गया कि भावें कि सनलाइट भी उत्थे मौजूद आ, सनलाइट भी ठीक है, ईवन दैन वो रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते। पर जदों ग्रीन लीव्स जिहड़े आ, ग्रीन लीव्स प्लांट दे ओदी क्लोरोफिल जिहड़ी है वो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। ठीक है जी, सो ਇਹਦਾ मतलब रिएक्शन मिक्सचर आ ਉਹਦੇ 'ਚ अनदर एक्सटर्नल सोर्स अगर एक्सटर्नल सबस्टांस प्रेजेंट है विच इट सेल्फ नॉट अंडरगो any chemical reaction and but absorb the light, fall upon it, whether it is visible or UV radiation, get excited, collide with the one of the reactant molecule, transfer the extra energy to one of the reactant and make them activated and itself undergo non-activated state, and in this way that activated molecule react with the other molecule and result into the formation of carbohydrate। here in case of photosynthesis नाल रिलीज़ की होएगी ऑक्सीजन। बेटा मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कीता। सो बेटा क्लोरोफिल की है फोटोसेंसिटाइजर एंड द फिनोमेना इज सेंसिटाइजर। ठीक है, सेंसिटाइजर विच इट सेल्फ नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन बट absorb the energy, fall upon it, absorb the light or UV radiations or electromagnetic radiation, fall upon it, get activated, transfer that extra energy absorbed from the fallen electromagnetic radiation to the one of the reactant that get activated, that reactant molecule bring about chemical reaction, so that substance which bring about, which absorb the energy and transfer to the reactant molecule by colliding it with it and initiate the reaction। so itself doesn't undergo any chemical change but initiate the photochemical reaction, that is called photosensitizer, and the phenomena is called photosensitization and the reactions are called photosensitized reaction। so the substance which when present along with the reaction mixture reacting species in a reaction mixture absorb the light or UV radiation
fallen upon the mixture. And itself doesn't undergo any chemical reaction, but transfer that absorbed energy light energy to the reactant and thus initiates the photochemical reaction. Is called photosensitizer, and the process is called photosensitization. And the reaction are called photosensitized reactions. Clear beta? For example, dissociation of hydrogen molecule, breakdown of hydrogen molecule. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਡਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੈਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ a radiation, electromagnetic radiation, of wavelength 2537 angstrom does not absorb at all. ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ 2537 ਐਂਗਸਟਰੋਮ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਲਾਈਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਐਟ ਆਲ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰਗੋ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰਗੋ dissociation. However, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਵੇਪਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, however, in the presence of small amount of mercury vapor, Hg ਹਾਈਡਰਾਜੀਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਨੂੰ, ਮਰਕਰੀ ਵੇਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, mercury vapor here act as photosensitizer and absorb this 2537 angstrom wavelength light and get activated. Then
and then it collide with hydrogen molecule and transfers the absorbed energy extra energy to hydrogen molecule. So hydrogen molecule get now activated, get excited or activated, so highly energized हो जाएगा, undergo dissociation and hence undergo chemical change, undergo dissociation of its bond to form hydrogen atoms. With the light of same wavelength. सो बेटा यदि केमिस्ट्री की होएगी केमिस्ट्री की होएगी मरकरी तो लाइट फॉल की थी ਆਪਾਂ 2537 ਦੀ एंगस्ट्रॉम ਦੀ तो वो की हो गया बेटा एक्टिवेटेड एक्साइटेड या एक्टिवेटेड. So it will act as photosensitizer. ठीक है मरकरी ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मरकरी है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना स्ट्राइक करेगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा, घट मतलब नॉर्मल स्टेट चेंज हो जाएगा और इन्हों एक्साइटेड मॉलिक्यूल बना देगा या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्साइटेड या एक्टिवेटेड कर देगा. जिदा जिदा केमिस्ट्री लिखनी है या कैमिकल रिएक्शन लिख लो या फिर तुसी उन्होंने कन्वर्ट कर दो. ठीक है बेटा ये हो गया. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड है वो फिर डिसोसीएट हो जाऊगा 2H एटम्स के विच. सो हेयर मरकरी एक्ट एज फोटोसेंसिटाइजर. नाउ हुण यदि आप गल कर लीए इन जनरल इतों लेट डी डिनोट और denotes the photosensitizer. Photosensitizer, and A denote the reactant. Then mechanism of photosensitization can be represented as आप क्या डी की है बेटा फोटोसेंसिटाइजर. ये लाइट अब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेशन होगी, एक्साइट हो जाएगा, फोटोसेंसिटाइजर है. डी है ना. एक्साइटेशन फिनोमेना हो जाएगा या एक्टिवेशन कह दें, एक्साइटेड हो जाएगा. ठीक है. दूसरा स्टैप ये जो एक्साइटेड फोटोसेंसिटाइजर है ये रिएक्टेंट ए ना रिएक्ट करेगा. सो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी. एनर्जी ट्रांसफ़र जिन्नी अब्जॉर्ब की इन्हें वो ए नू
दे देगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड या एक्साइटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट हो जाएगा बेटा। तो ग्राउंड स्टेट आ जाएगा वापस डोना आई मीन टू से हेयर फोटोसेंसिटाइजर। क्लीयर। थर्ड स्टैप से विच ये जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट आ वो रिएक्ट करेगा, अंडरगो करेगा केमिकल चेंज, अंडरगो करेगा केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है बेटा। हुण आपां गल करनी है वंस द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफर बाय ए फोटोसेंसिटाइजर the photochemical reaction take place, photosensitizer present in the system must fulfill the, कई बार आ जाता कि what are the conditions to be act as photosensitizer, what are the conditions to be fulfilled by a substance to act as photosensitizer. So photosensitizer present in the system must fulfill the following condition. Means number one, it must get excited by the radiations यूज्ड फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन लिए यूज़ कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जॉर्व करके एक्साइट होना जरूरी है। इट मस्ट बी एक्साइटेड एक्टिवेटेड होना जरूरी है। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड शुड बी द मेजर लाइट अब्जॉर्बर। यही मेजर लाइट अब्जॉर्बर होना और ये सफिशेंट कॉन्सेंट्रेशन च प्रेजेंट होना चाहिए है। इट मस्ट बी एबल टू ट्रांसफर एनर्जी टू द डिजायर्ड रिएक्टेंट बाय कोलाइडिंग। फोर्थ energy triplet state, energy of the triplet state of the photosensitizer must be greater than that of the reactant. Energy of the triplet state of the photosensitizer must be greater than of the reactant. Please एक नंबर आ जाता, energy of the triplet state of the photosensitizer must be greater than that of the reactant. Clear? Now few example. Dissociation of ethylene बेटा, dissociation of ethylene यदि जो आप गल करिए कि जो वैने मिक्सचर डिसोसीएशन की गल कर लीए बेटा, यदि एग्जाम्पल ले रहे हैं डिसोसीएशन ऑफ इथलीन, इथाइलिन, डिसोसीएशन ऑफ इथाइलिन, एस्टलीन भी कहते हैं, इथाइलिन या एस्टलीन जानो इथाइन कहते हैं। जो बेटा मिक्सचर है ना, मिक्सचर मैं हम बोलना नहीं, वैन ए मिक्सचर ऑफ एस्टलीन एंड मरकरी वेपर्स आर इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2537 एंगस्ट्रॉम या 253.7 नैनोमीटर, तो फिर की होएगा मरकरी ए लाइट जी है 253.7 नैनोमीटर की अब्जॉर्ब करेगी, एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा। ए किसी फोटोसेंसिटाइजर मरकरी, ठीक है जी। ए एक्टिवेटेड हो गया बेटा, लिखना तो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड इन्हें ट्रांसफ़र की एनर्जी टू एस्टलीन, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र लिखना इत्थे, तो ये मरकरी नॉर्मल हो गया प्लस नाल एस्टलीन जिहड़ा HC ट्रिपल बॉन्ड द्वारा लिख देंगे प्लस HCH, एक ही हो जाएगा एक्टिवेटेड, ठीक है। ये एक्टिवेटेड रिएक्टेंट जिहड़ा आ डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, कार्बन ते हाइड्रोजन डाउनवर्ड एरो कार्बन एंड हाइड्रोजन। इधर तुसी इथलीन की कर सकते हैं डिसोसीएशन ऑफ इथाइलिन नहीं आना चाहिए सी इत्थे, ठीक है। डिसोसीएशन ऑफ एस्टलीन, तो इदा ही डिसोसीएशन आप कर सकते हैं
ਈਥੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਕਰੀ ਵੇਪਰ ਤੇ ਈਥੀਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਉਣੀ ਆ 2537 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 253 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, 53.7 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये फोटो सेंसिटाइज़र एक्ट करेगा। इतने फोटो सेंसिटाइज़र लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये फिर ट्रांसफर करेगा एनर्जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ਨੂੰ इथीन एनर्जी ट्रांसफर होएगी और ये एक्टिवेट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, नाल मरकरी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट आ जाएगा। ये इथलीन जोड़ा एक्टिवेटेड आ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये एसलीन देगा, नाल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एसलीन भी या इथाइन भी की है आ गैस। अगे बेटा तुसीं कर सकते हैं कंबीनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। सो कार्बन मोनोऑक्साइड ते हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर विच मरकरी आपां पानी है, ठीक है। ये फोटो सेंसिटाइज़र दी फॉर्म चेक करेगा। ओवरऑल रिएक्शन की बनेगा ग्लाइऑक्सल HC डबल बॉन्ड O, इनू कहने हैं ग्लाइऑक्सल। एक एक नंबर च आ जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका की होएगा, मरकरी वेपर तो हमेशा 253.7 नैनोमीटर या 2537 एंगस्ट्रॉम की लाइट फॉल करनी है, तो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। इतने फोटो सेंसिटाइज़र लिखना। ये जोड़ा हाइड्रोजन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, वन ऑफ द रिएक्टेंट हाइड्रोजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट आ जाएगा मरकरी, तो H2 जोड़ा एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा। H2 जोड़ा एक्साइटेड स्टेट दे विच आया बेटा, है ना, तो H2 जोड़ा जो एक्साइटेड स्टेट आ गया वो डिसोसीएट होकर दो हाइड्रोजन एटम बना देगा। ये हाइड्रोजन एटम चो एक हाइड्रोजन एटम कार्बन मोनोऑक्साइड ना मिलके HCO फॉर्मिल ग्रुप बनाएगा, ठीक है। फॉर्मिल जोड़ा अगों फिर हाइड्रोजन गैस ना रिएक्ट करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड जिन्होंने मिथानल भी कहने HC डबल बॉन्ड O H फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा बेटा, इनू मिथानल भी कहने आइसोप्रोपेन। नाल हाइड्रोजन एटम बनेगा, दो फॉर्मिल ग्रुप जोड़े फॉर्मिल ग्रुप HCO वो आपस में कंबाइन करके की बनाओगे, दो फॉर्मिल ग्रुप मिलके की बनाओगे ग्लाइऑक्सल HC डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। ग्लाइऑक्सल हुण असीं करना फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। natural processor in green plants। रिएक्शन ओवरऑल थानू पता कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट क्लोरोफिल हेयर एक्ट एज फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है। तो साढ़े को मैं बैलेंस नहीं कर रही सी A6H12O6 ग्लूकोज आ जाएगा, नाल ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। सो ग्रीन पिगमेंट मैं बार बार बोलिया जोड़ा क्लोरोफिल वो एक्ट करेगा फोटोसेंसिटाइजर, इन्हों मैं डिटेल च नहीं दसना। विजिबल लाइट अब्जॉर्ब करेगा, विजिबल लाइट फिर वो ट्रांसफर करेगा। अगे डीकम्पोजिशन ऑफ, अगला पॉइंट है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मेरा फार्मूला ऑक्सैलिक एसिड का थानू पता है ना। एक्टिनोमीटर जोड़ा है केड़ा यूरेनिल एक्टिनोमीटर,
एक्टिनोमीटर यूरेनिल। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ऑक्सैलिक एसिड ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ 0.05 ਮੋਲਰ ऑक्सैलिक एसिड ਤੇ 0.01 ਮੋਲਰ ਆਫ यूरेनिल सल्फेट ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ यूरेनिल सल्फेट ਦਾ UO2SO4 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 0.0। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਫੋਲ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ 254 ਤੋਂ 435 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਦੀ। ठीक है। सो केमिस्ट्री की होएगी कि इतने लाइट फॉल की है तो UO2 यूरेनिल आयन यूरेनिल सल्फेट तो है ना वो लाइट अब्जॉर्ब करेगा, ये फोटोसेंसिटाइजर एक्ट करेगा। 254 तो 435 नैनोमीटर की तो ये एक्साइटेड स्टेट च चला जाएगा। ये फिर जिहड़ा यूरेनिल है एक ऑक्सैलिक एसिड नाल कोलाइड करेगा और उन्होंने डिसोसीएट कर देगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, एक्साइटेड स्टेट आप नॉर्मल स्टेट आ जाएगा तो फर्दर एक्टिवेट होके यदि एक्स्ट्रा एनर्जी जी इधर ट्रांसफर हो जाएगी। फिर उस तो बाद डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड च कार्बन डाइऑक्साइड दे विच ते वाटर च। क्लीयर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फोटोसेंसिटाइजेशन का फिनोमेना खत्म। एक लास्ट थोड़ा जिहा टॉपिक आ फोटो इनहिबिटर। वो आप किया कि जो फोटोसिंथेसिस HCl की करते हैं फ्रॉम H2NCl2 चेन मैकेनिज्म सैटअप हो जाता है। तो जो वो मन्यूट क्वांटिटी है ना ऑक्सीजन की होवे तो वो की करती है ऑक्सीजन की वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नाल कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देंदी है। तो वो जो चेन का जो रिएक्शन है उन्होंने चेन को स्टॉप कर देंदी है, क्वांटम झील को घटा देंदी है। तो जो सबसटेंस विच वैन एडेड फ्रॉम द आउटसाइड या ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर तो वो जोड़ा वो डिक्रीज़ करे क्वांटम यील्ड ऑफ दैट फोटोकैमिकल रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड फोटो इनहिबिटर। ठीक है जी। सो बेटा लास्ट टॉपिक ये लास्ट नहीं है बेटा, फोटो इनहिबिटर इनहिबिट करना इनहिबिटर when traces very small amount when traces of certain substances are present in some photochemical reaction the rate of photochemical reaction get decreased, get reduced. As a result, quantum yield phi of that photochemical reaction is considerably lowered since the rate of photochemical reaction decreases rapidly in the presence of inhibitor
present in extremely small quantity. So what are photoinhibitor? Substances which when present in very minute quantity in a reaction mixture decreases the rate of photochemical reaction and decrease the quantum yield phi of that reaction, of that photochemical reaction, is called photoinhibitor. inhibitor inhibitors, ठीक है जी, photoinhibitors.